This conference will template, now be recorded. RDM templates, ये तो सब it will be in next topic ना सर? The RDM is a part of share storage. Template and Okay. clone, which are part of, you can say that all the part of our vCenter server. When we set up the vCenter server, then clone and templates come into the picture. Okay, sir. So now let me proceed for the another points that we need to cover. The another point is related to, I think in previous class we have already completed about the LUN, लॉजिकल यूनिट नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, डेटा स्टोरेज डिस्क के बारे में बात कर ली है. These all सर are the points. शेयर Most of किया the सीन point we already shared. Everyone, please confirm if you're able to see my screen. Yes, yes. Yes, मेरा sir. पास Yes. Is it visible, right? यस यस सर लर्न आई थिंक कवर नहीं हुआ सर. डेटा स्टोर एंड डिस्क के बारे में Learning तो हो गया था. नहीं, RDM डिस्कस करना है आज और नो नो NFS सर डिस्कस. लर्न सर लर्न एक बार Let हम me check. काइंडली वो करेंगे. सर लर्न जो है उसको एक बार सर काइंडली रिकॉल करेंगे प्लीज. Sure, just give me 1 minute. For example, this is our ESXi host that we established, and ESXi के लिए हमने कल डिस्कस किया था, एक शेयर स्टोरेज एस्टैब्लिश किया था with capacity of 50 gig, right? Because we don't have any kind of SAN storage, so we establish our storage with the help of server 2012, और उसी server 2012 को हमने as a SAN treat कर रहे हैं. The capacity of SAN is basically 50 gig. इसमें हमने 50 GB का स्पेस डिसाइड किया था. And now from 50 gig the space that you want to share, like 50 GB में से आपने प्लान किया कि I'm planning to distribute 25 gig space to our ESXi host. ठीक है. From 50 gig space you decided to share 25 gig of हार्ड डिस्क स्पेस. आप इसमें से 25 जीबी का स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, 25 गीग का स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो ये जो 25 जीबी का स्पेस आपके ESXi में आके स्टोर होगा या कनेक्ट होगा, विच कंसीडर एज ए 25, और इस बॉक्स को, इस पीस को आप लॉजिकल यूनिट नंबर के नाम से जानते हैं. दिस इज लर्न. इसी को लर्न बोलते हैं, इसी को लॉजिकल यूनिट नंबर बोलते हैं. लॉजिकल ओके यूनिट ओके सर. number. ओके सर. The piece that you want to share through the share storage, वो सिंगल सा टुकड़ा जो है वो आपका लॉजिकल यूनिट कहलाएगा. सिंपल. Now it's fine. Yes, it sir. will come Got under it. data store, right? The one we have. Yes sir. Yes yes. Sorry? It's clear now. Clear now sir. Yes it's clear now. Clear. Cool. So let's proceed for the another point. In previous class we discussed about the SAN. We discussed about the setup in the sense कि किस तरीके से हम अपने स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. स्पेस इन द सेंस कि सैन स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके लिए हम ऑलरेडी आईएसकेजी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं. We have already discussed about how we can distribute the space through the iSCSI, and now we need to proceed and understand about the another points like as NFS के थ्रू भी हमें आना चाहिए. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो हम iSCSI के थ्रू किए थे. Small computer system interface, iSCSI is a type of protocols that help us to distribute the space from share storage to ESXi. शेयर स्टोरेज में से ESXi होस्ट को स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आईएसकेजी कैन हेल्प अस. आईएसकेजी हमारी हेल्प करता है. सर आइस Today I केजी am की going कैसे वो बताइए आपने फुल फॉर्म. सॉरी सर. आइस केजी की फुल फॉर्म क्या बताई सर आपने? स्मॉल कंप्यूटर. small internet small computer system interface. Okay. Now I'm going to help you to understand about NFS. NFS कैसे हम यूज करते हैं उसको देख लेते हैं. For the NFS you must need to open your server machine, क्योंकि अपने पास कोई थर्ड पार्टी SAN नहीं है तो आप सर्वर का ही इस्तेमाल करेंगे. use as a
शेयर स्टोरेज, ठीक है, शेयर स्टोरेज की तरह हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। टू इंस्टॉल द एनएफएस, ओपन सर्वर मैनेजर विजार्ड, यहाँ पे हम सर्वर मैनेजर विजार्ड ओपन कर लेंगे। अंडर द सर्वर मैनेजर विजार्ड वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐड रोल एंड फीचर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। Under the file and storage services we are able to find NFS installed है, and we are able to find ISKG target server। ये दोनों सर्विसेज हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो NFS और ISKG हमें इंस्टॉल करना है टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस बैक एज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ सेटअप। यहाँ पे हमने एक पार्टीशन क्रिएट कर रखा है 50 GB का विद, सॉरी we created one more drive, I think, let me check। ठीक है, यहाँ पे 50 GB विच इज अनअलोकेटेड, लेट मी टर्न ऑन। 100 GB का स्पेस जो है इसको ऑनलाइन कर देते हैं। ठीक है, वी हाईलाइटेड विद एफ ड्राइव, 100 GB का स्पेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। 100 GB का स्पेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, एफ ड्राइव है। ISKG के थ्रू हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद द NFS। और NFS के केस में क्या होगा, वी जस्ट नीड टू ओपन आवर पार्टीशन 100 GB स्पेस, इसमें एक फोल्डर क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से, लाइक NFS के नाम से। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप NFS रखोगे। ओपन प्रॉपर्टीज, गो टू NFS, मैनेज NFS में जाएंगे, शेयर NFS, परमिशंस, और इसको आप रीड एंड राइट कर दो पहले, एंड ऐड पे क्लिक करेंगे एंड अलाउ द IP एड्रेस ऑफ योर डोमेन। अपने सर्वर की IP एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगेन इसको भी रीड राइट की परमिशन दे देंगे। वी जस्ट नीड टू क्लिक ओके, अगेन ओके, कंटिन्यू, अप्लाई एंड ओके, दैट्स इट। आपका NFS कंप्लीटेड है। टू एक्सेस द स्पेस, हेलो, NFS folder shared successfully, back to the ESXi host GUI panel पे, open ESXi host 192.168.1.22, I'm going to add one more storage। यहाँ पे एक और स्टोरेज ऐड कर लेते हैं। Select storage, click add data store, and this time proceed with mount NFS storage। Just need to click on mount NFS storage। यहाँ पे आप IP एड्रेस दे देंगे, नाम दे देते हैं, मीन्स नाम इन द सेंस NFS storage। सर्वर हमारा है 192.168.1.100, और यहाँ पे पाथ देंगे। क्या हमारा पाथ हमारा है E:/F:/NFS, F:/NFS, that's it। नेक्स्ट, विद इन सेकेंड हमने एक 100 GB का स्पेस अटैच कर दिया। दिस इज द प्रोसीजर दैट हेल्प अस टू कॉन्फ़िगर द NFS।
Hello, guys, can you hear me? यस सर, यस सर। ये तो एक एग्जांपल हुआ जैसे आप बता रहे हैं सर कि दिस इज द एनवायरनमेंट इफ वी आर नॉट यूजिंग द एनी स्टोरेज, सेंट्रलाइज स्टोरेज अगर हम नहीं यूज करते, क्योंकि उसी का एक सेकेंडरी ये सॉल्यूशन है ना सर उसका, एक तरह से मतलब अगर हम कहीं से दूसरी स्टोरेज से लेके आते हैं किसी सर्वर से, नहीं नहीं, उसका यहाँ स्पेस। पे मिनिमम आपके पास एक विंडोज सर्वर होना चाहिए शेयर के लिए। हाँ, विंडोज सर्वर तो होगा ही होगा वो, इसीलिए क्योंकि सर एक चीज बताइए कि एग्जांपल में अगर फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग द टू नोड्स विच आर EXI होस्ट, ओनली मेरे पास टू ही सर्वर है, दोनों में सेम ही हम्म, कैपेसिटी है, स्टोरेज भी सेम है, तो उस केस में मैं कैसे शेयर्ड स्टोरेज यूज करूंगा उनकी, मेरे पास थर्ड सर्वर भी नहीं है कोई सर। देखो, रियल इन्वायरमेंट में आप इस प्रैक्टिकल को एक स्टेप जो है यहाँ पे स्किप हुआ है। आपको सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ये दो प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प करते हैं टू शेयर द स्पेस। ओके। In our setup, we set establish our share storage using server operating system. यहाँ पे हमने एक हम्म। सर्वर लगा दिया 2012, 2016, 2019, कोई सा भी, ठीक है, बिकॉज ये सर्वर जो है हमें ऑप्शन देते हैं टू शेयर द स्पेस। यहाँ पे हमारे पास ESXi लगा दी, कितनी भी ESXi लगा दो, इट्स नॉट मैंडेटरी, 3 से 4 हमने ESXi लगा दी। अब ये जो दो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको दोनों प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं, कंटेन ISKG, कंटेन NFS प्रोटोकॉल। ISKG और NFS ये दो प्रोटोकॉल है, CIFS भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये तीनों प्रोटोकॉल मैनेज करते हैं, हेल्प करते हैं टू शेयर द स्टोरेज। शेयर स्टोरेज को शेयर करने के लिए इन्हीं प्रोटोकॉल्स की हेल्प लेते हैं हम। इन्हीं प्रोटोकॉल का रियल इन्वायरमेंट में यूसेज रहता है। हमने क्या किया यहाँ पे, अपने सर्वर मशीन में से जो हार्ड डिस्क थी ना, जो स्टोरेज था 100 GB का जो स्टोरेज था, उसी स्टोरेज को विद द हेल्प ऑफ ISKG एक बार शेयर किया, उसी स्टोरेज को विद द हेल्प ऑफ NFS एक बार शेयर किया, ISKG के थ्रू शेयर किया और NFS के थ्रू भी शेयर किया। इज दैट करेक्ट? तो ये दोनों प्रोटोकॉल का हमने प्रैक्टिकल देखा। ये है अपना लैब जो ट्रेनिंग के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने ऑफिशियल सेटअप की। जो ऑफिस में सेटअप रहता है सब कुछ ऐसा रहेगा, ESXi रहेगा अपने पास, और यहाँ पे शेयर स्टोरेज में सर्वर की जगह पे हमारे पास स्टोरेज होगी। यहाँ पे एक सैन स्टोरेज लग जाएगा बेसिकली। यहाँ पे एक सैन स्टोरेज लग जाएगा जिसको स्टोरेज टीम हैंडल करेगी। ये स्टोरेज टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी 50 TB के आसपास है। अब शेयर स्टोरेज टीम क्या करेगा, यहाँ पे एक सिस्टम रखेगा इसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एक सिस्टम एक यहाँ पे स्टैब्लिश करेगा, एंड इसमें से छोटे छोटे पार्ट को वो डिवाइड करेगा, किसके थ्रू, इसी सॉफ्टवेयर के जरिए। इस मशीन में जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें कई भी सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। इसमें वीम हो सकता है, वीम बैकअप का नाम सुना होगा आपने। इसमें नेट ऐप हो सकता है, इसमें कोई भी और टूल भी हो सकते हैं, अलग अलग टूल्स आते हैं मार्केट में। डैटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, ये जो टूल मशीन है ये डायरेक्टली स्टोरेज से हैंडल रहेगी, और इस मशीन का एक्सेस हमें नहीं रहेगा, ये मशीन का एक्सेस स्टोरेज टीम के पास रहेगा। हम क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू रिक्वेस्ट। हम इसके ऑनर हैं, हम ये सेटअप के ऑनर हैं, इस ESXi के ऑनर हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे, ESXi होस्ट 1 ने रिक्वेस्ट की, ESXi 2 ने रिक्वेस्ट की, ESXi होस्ट 1 ने रिक्वेस्ट की प्लीज आप मुझे 2 TB का स्पेस प्रोवाइड कर दो। इसने रिक्वेस्ट की आप मुझे 1 TB का स्पेस प्रोवाइड कर दो। तो ये रिक्वेस्ट क्या होगी, इस सिस्टम के पास आएगी, दोनों की रिक्वेस्ट आएगी, और ये क्या करेगा, उतने कैपेसिटी का लन, सेम कैपेसिटी का लन ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। स्टोरेज की एक IP एड्रेस होगी 192.168, कुछ भी हो सकता है,
100 जो हम सर्वर की आईपी दे रहे हैं वहां पे स्टोरेज की आईपी होगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे ही ये बोलेगा कि हमने आपको एक लन असाइन कर दिया, आप इस ESXi के इन्वेंट्री पे आएंगे। आइस केजी है तो आइस केजी के मेथड के थ्रू स्टोरेज को ऐड करना, NFS है तो इस NFS के स्टोरेज के थ्रू आप स्टोरेज को ऐड करने का मेथड आपको पता होना चाहिए। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये स्टोरेज टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप केवल इनको ऑर्डर दोगे कि मुझे इतने स्पेस चाहिए, आप कहीं से भी अरेंज करो। दिस इज द रियल इन्वायरमेंट। इस वाले सेटअप से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, ये केवल स्टोरेज टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। एक तरह हमें से सर सिर्फ हमारे जो बोलना सेमी होगा। स्टोरेज है। सॉरी। सर सॉरी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। जैसे हम जो है अभी जैसे स्टोरेज का भी हम करते हैं, तो हम्म स्टोरेज में भी क्या होता है, जैसे हमने अभी HP की MSA 2060 स्टोरेज थी, लास्ट वीक हमने करी थी कॉन्फ़िगरेशन। तो देयर इज 3 लन आर देयर। फर्स्ट वन इज दी VM के लिए बना दिया, सेकंड हमने जैसे उसके लिए बना दिया डाटा स्टोर, थर्ड वन इज दी बैकअप लाइक दैट एंड एप्लीकेशन। तो वो करके फिर हम्म हमने उस हिसाब से ही, जैसे आप बोल रहे हो उस तरह से इसको माउंट कर हम्म देंगे। ठीक है। और उनमें अपनी EXI होस्ट जो मशीन है VMs वहाँ पे उसमें प्रोविजनिंग कर हम्म देंगे सारी मशीन। हम्म। ओके सर, आई अंडरस्टैंड दैट। Any other question, guys, about the storage? Guys, please confirm. No, sir. No, sir. No, sir. That's okay. Yes, sir. Okay. Okay, let's talk about RDM. Last topic है storage का, RDM, राड डिस्क मैपिंग। Rakesh, can you mute yourself? Getting lots of background noise. Yes, yes. Done, sir. Done. Thank you. Okay, let's talk about the RDM, जो काफी important topic है, and we should know about कि RDM का real environment में usage क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो I have already installed one virtual machine, I think ये running में है। तो let me turn on the VM and I hope कि इसमें एक operating system run कर रहा हो, ताकि हम practically इसको देख सकें। No, 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 यहाँ पे तो नहीं है। Let me install the new operating system. RDM जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तो लेट मी शो यू द स्टेप हाउ वी कैन मैनेज द RDM, और इसका रियल इन्वायरमेंट में यूसेज क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी इंस्टॉल वन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे एक OS इंस्टॉल कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम, बट अभी के लिए हम यहाँ पे एक नया OS इंस्टॉल कर लेते हैं। क्योंकि एक तो पुराना हो जाएगा। लेट मी 16।
ठीक है, ये इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, मीन्स अपलोडिंग के लिए हमने इसमें लगा दिया, 4% हो गया। मीन वाइल लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द यूसेज ऑफ RDM, रा डिस्क मैपिंग। रा डिस्क मैपिंग क्या होता है? ESXi होस्ट हमने लगा रखा है यहाँ पे, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश शेयर स्टोरेज, टीम हमारी हैंडल कर रही है शेयर स्टोरेज की, और इस शेयर स्टोरेज में मल्टीपल पार्ट हम मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल पार्टीशन हम लगा सकते हैं, एज वी डिस्कस कि वी आर एबल टू क्रिएट अ मल्टीपल पार्टीशन इन अवर शेयर स्टोरेज। और इसमें हमने एक छोटा सा पार्ट, इस पूरे जो कैपेसिटी है 100 TB की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल, इस 100 TB स्पेस में से आई वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्यू स्पेस। यहाँ से हमने प्लान किया कि जस्ट नीड टू डिस्ट्रीब्यूट 500 गिग का स्पेस हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, 500 GB का स्पेस हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एंड ESXi host contain one virtual machine like this, everything is okay। now जब आप अपना ये 500 GB हार्ड डिस्क स्पेस डायरेक्टली वर्चुअल मशीन को असाइन करते हैं, वो आपका RDM कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं रा डिस्क मैपिंग। इसको हम बोलते हैं रा डिस्क मैपिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू यूज RDM? क्वेश्चन ये आता है कि RDM को सेट करने में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन RDM के थ्रू स्पेस को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। So what we need to do, we just need to understand about the concept of RDM। RDM के केस में हम क्या करते हैं, when you need required to set up a high speed, जब आप इसमें हाई स्पीड स्टोरेज यूज करना चाहते हैं, आपने कोई सिक्वल लगा रखा है, सर्वर लगा रखा है, आपने कोई एप्लीकेशन सर्वर लगा रखा है, आपने कोई वेब सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है, ठीक है। इनमें से अगर आपने कोई सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है एंड यू नीड हाई डेटा ट्रांजैक्शन स्पीड, सो इन दिस केस आपके सिस्टम में RDM होना चाहिए। या अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, स्टोरेज माइग्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, कभी आप एक ESXi के, कभी आप एक वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, वो कभी दूसरे वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, दैट टाइम RDM विल हेल्प अस, हार्ड डिस्क कैन हेल्प अस। गाइस प्लीज कंफर्म अगर आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो। Sir, can you सर please एक repeat चीज, it once? तो सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, हाई डिस्क हाई स्पीड के लिए तो सर अब पहले तो हमारे पास जो बेसिक डिस्क आती थी, सहज डिस्क हम यूज करते थे 10 की, अब तो हमारे पास SSD डिस्क भी आ गई, तो फिर SSD में तो परफॉर्मेंस काफी बेटर होती है, तो फिर जब भी उसके बाद भी RDM क्यों यूज करते हैं सर? अब तो SSD नहीं में नहीं, भी परफॉर्मेंस बेटर होती है उससे सर। सॉरी, मैं कह रहा सर SSD, अगर हम SSD भी यूज करते हैं, क्योंकि SSD में भी तो बेटर परफॉर्मेंस होती है सर, उसके बाद भी RDM को क्यों यूज करते हैं सर? बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बट बजट भी कुछ होता है। नहीं, बजट होता है सर, हाँ ये है, पाँच मेरे एनवायरनमेंट में प्रीवियसली पाँच RDM सौ यूज जीबी होगा। 500 GB, 1000 GB, 1 TB, 2 TB तक आप SSD हायर कर लोगे, नो इशू। कोई भी कंपनी हम्म, अवेयर कर लेगी, चलो 1 TB तक SSD या 2 TB तक SSD क्लियर है कि वो लगा देगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थिंक हाँ, अबाउट व्हाट हैपन जब आप 100 TB की स्पेस को कंज्यूम करना चाहते हैं, ओके, एंड नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ 100 TB, आपको 100 TB को बनाने के लिए ना कम से कम आपको 300 100 TB की 300 TB का स्पेस चाहिए। यस, अब सिर्फ 100 TB का स्पेस नहीं है, 200 TB आप बैकएंड में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कंपनी डेटा के प्रोटेक्शन को चाहेगी, तो रेट रेट फाइव चाहिए लगाएगी सर, रेट लगाएगी। 6, रेट 5 6, ठीक है, आई रेट नो 10। दैट SSD introduced in market in year of 2013-14 के आसपास SSD आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। हम्म, बट पहले तो बहुत ज्यादा कॉस्ट थी, अभी तो फिलहाल कम हो गया है इसका, मीन जो कॉस्ट है उसकी कम हो गई, काफी कम हो गई है SSD की, हम्म, लेकिन पहले इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था, ठीक बहुत है। ज्यादा सर। आज की डेट में SSD की कॉस्ट कम हुई है, कम इन द सेंस कि यू कैन बाय 250 गिग हार्ड ड्राइव विद इन 2000 ₹2000 में आ जाएगी,
1800 हम्म 1600 1700 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। ठीक है। 1 TB का आपको पे करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, 1 TB की अगर हम बात करें तो 6000 to 7000 में आपको 1 TB स्पेस मिल जाएगा SSD में, या हम्म मे भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है 8000 के आसपास। बट ठीक है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 TB। जब आप बल्क में स्पेस करते हैं ना, तो बल्क में जब आप स्पेस परचेज करते हैं तो उस केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहला तो सेटअप करें एक स्टोरेज, दूसरा उसके अंदर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। रेड 2 भी लगाओगे तो डुअल आपको स्पेस यूज करना पड़ेगा, हम्म 100 TB है तो 200 TB देना पड़ेगा। अगर आप रेट 5 लगाते हो तो 300 TB का स्पेस जाएगा, अगर आप रेट हम्म 6 लगाते हो तो कम से कम आपको स्पेस देना पड़ेगा 400 TB का। इज दैट करेक्ट? यस तो स्पीड मिल जाएगी, पैसा लगेगा कोई इशू नहीं, बट स्पीड मिल जाएगी, बट उतना ज्यादा हम नहीं लगाएंगे, कोई भी कंपनी नहीं लगाती। प्लस इसका और भी यूसेज है ना, केवल स्पीड आपने यहाँ पे चेक किया कि चलो ठीक है स्पीड हमने आपने देखा स्पीड पे क्वेश्चन रखो। इट विल आल्सो हेल्प यू इन केस ऑफ माइग्रेशन। जब अगर आप स्टोरेज का माइग्रेशन करना चाहते हैं, द मीनिंग ऑफ स्टोरेज माइग्रेशन, कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर का एक ड्राइव है, सॉफ्टवेयर की ड्राइव है, उसमें आपने सारे सॉफ्टवेयर रख रखे हैं लाइक दिस। स्टोरेज माइग्रेशन का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वर्चुअल मशीन थी, और भी VMs आपने तैयार कर रखे हैं, we establish another virtual machines as well। यहाँ पे कुछ और इंस्टेंसेस हमने तैयार कर रखे हैं। RDM को क्या है ना, इतना फ्लेक्सिबल है RDM, रेडियस मैपिंग इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि आपने 500 GB यहाँ पे जोड़ रखा था, फॉर एग्जांपल 500 GB आपने यहाँ पे अटैच कर रखा था, आप इसको विद इन सेकेंड उठा करके, 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा, आप इसको दूसरे इंस्टेंस में ऐड कर दोगे, आप इसको तीसरे इंस्टेंस में ऐड कर दोगे। मतलब 500 GB का डेटा आप विद इन सेकेंड जो है एक एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस में माइग्रेट कर पा रहे हो, ट्रांसफर कर पा रहे हो। दिस इज द अनदर यूसेज इन रियल इन्वायरमेंट। यस आपको फिर उस डिस्क का लर्न जो है उठा करके एक दूसरे ESXi होस्ट में वर्चुअल मशीन में अटैच करने हैं, डी अटैच करने हैं, सिंपल। यस ओके छोटा सा प्रैक्टिकल है, लेट मी शो यू द हाँ प्रैक्टिकल। सर एक और क्वेश्चन था इसमें। जब हम आरडीएम यूज करते हैं ना सर, तो जो बैकअप लेने में और स्नैपशॉट आपने बताया था, दोनों में प्रॉब्लम आती है कि आरडीएम अगर आप यूज कर रहे हो तो बैकअप में भी आएगी और आपको स्नैपशॉट में भी आएगी, तो दोनों में वो भी इशू आता है हमें जब भी हम एग्जैक्टली आरडीएम यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल। RDM जब हम लगाते हैं, जब भी हम RDM डिस्क लगाते हैं, तो RDM के केस में इट विल क्रिएट इश्यूज रिलेटेड टू द, जब आप इंस्टेंस का, सॉरी, जब आप इंस्टेंस का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, नॉट बैकअप, आप जब आप उसको रीस्टोर करेंगे, स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, तो इन केस ऑफ हम्म स्नैपशॉट इट विल क्रिएट इशू। RDM यस डिस्क के साथ आप रिस्टोर नहीं कर पाओगे, यस स्नैपशॉट नहीं सर क्रिएट कर पाओगे। आपको हम्म डी अटैच करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, हम्म डेटा पे कोई फर्क नहीं हम्म पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आप डी अटैच करोगे, और डी अटैच करने के बाद आप उसमें स्नैपशॉट क्रिएट करिए, स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद री अटैच कर देंगे, सिंपल। हम्म। इस केस में सर हमें अलग से बैकअप लेना पड़ता है, उस आरडीएम मिक्स का अलग से बैकअप को वो लगाना पड़ता है, उसका जॉब भी आरडीएम का, जिसमें भी हमने ये लगा रखी है। हाँ, वो सिक्योरिटी के लिए हम लगा सकते हैं इसको। ओके सर तो इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, यहाँ पे हम एक OS इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉलेशन के बाद वी विल अटैच अ डिस्क यूजिंग RDM फॉर्मेट। RDM के थ्रू एक हार्ड डिस्क इसमें अटैच करेंगे, एंड लेट्स सी कि किस तरीके से हमारा RDM पिक्चर में आता है, किस तरीके से RDM हमारे इन्वायरमेंट को प्रोवाइड किया जाता है।
Installation is in progress. It may be take time, थोड़ा सा time लगेगा इसमें, and after that we'll proceed. Sir, meanwhile, can you please again explain RDM? Theory only, sir. Initially, for RAR one two disk, minutes. okay, sure. RAR disk mapping, ठीक है? RAR disk mapping. The usage of RAR disk mapping, we are able to assign the space directly from the storage to our virtual machine. इसमें आपके ESXi में कोई स्टोरेज नहीं जाता, ESXi होस्ट में कोई डेटा सेंटर नहीं क्रिएट होता। जितने का भी लन आप क्रिएट करोगे, लॉजिकल यूनिट नंबर तैयार करोगे, वो डायरेक्टली लॉजिकल यूनिट नंबर आपके वर्चुअल मशीन में असाइन हो जाएगा। क्लियर? Okay. Okay, sir. Okay. चलो, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। मीनवाइल बैक चलते हैं और बैक में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट कि एक लॉजिकल यूनिट नंबर तैयार करते हैं ISKZ प्रोटोकॉल के थ्रू, एंड देन विल असाइन द ISKZ टू डायरेक्टली आवर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने VM को असाइन करने वाले हैं। As we have already discussed about the ISKZ protocol, ISKZ is a protocol which is available in our server operating system में हमारा ISKZ protocol है। I'm just going to open dashboard, server manager dashboard open करेंगे, and in server manager dashboard what we need to do, we need to assign the space। हम अपने virtual machine को space provide करने वाले हैं। Select ISKZ, जितना भी स्पेस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो स्पेस यहाँ से आप डिसाइड करेंगे, एंड देन अलाउ टू आवर इन्वायरमेंट। ESXi होस्ट 1.22 है, यहाँ से हमने एक डिस्क क्रिएट की। जितना भी स्पेस आप डिसाइड करना चाहते हैं, लाइक आई वांटेड टू असाइन फ्यू स्पेस, यहाँ से टेस्ट RDM नाम दे देते हैं हम। हाउ मच स्पेस, 25 GB स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं RDM के लिए। ISKZ टारगेट पे जाएंगे, RDM टारगेट, नेक्स्ट, ऐड, टाइप द ESXi होस्ट IP एड्रेस। ESXi को हम IP के थ्रू प्रोवाइड करना चाहते हैं 192.168.1.22। नेक्स्ट, फिनिश, सिंपल सा। यहाँ से हमने कर दिया इसको फिनिश। नॉट कनेक्टेड, बैक टू द ESXi होस्ट। चलो मीनवाइल इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं ताकि प्रैक्टिकली हम देख सकें। आई जस्ट प्रोवाइडेड 2 GB ऑफ स्पेस, तो रैम में हमने 2 GB का स्पेस प्रोवाइड कर रखा है, सो दैट्स व्हाई इट विल टेक टाइम। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड चलो मीनवाइल हम इसमें
अपने इस ESXi में जो VM तैयार कर रहे हैं, इसके हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि हाउ मच स्पेस बी प्रोवाइडेड। एडिट सेटिंग में जाकर के द नंबर ऑफ हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क लगी है वो भी लोकल स्टोरेज में से 15 GB का स्पेस। यहाँ पे हम RDM अटैच करेंगे। अनफॉर्चुनेटली RDM का जो पैनल है ना वो ग्रेड आउट है, इट मीन्स दैट वी डोंट हैव एनी RDM। RDM हमें मैनुअली असाइन करना पड़ेगा। वी जस्ट नीड टू यूटिलाइज द RDM डिस्क। उसके लिए आप स्टोरेज में आ जाइए। अंडर द स्टोरेज गो टू द अडाप्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ISKZ अडाप्टर पे जाएंगे। चलो इसको करते हैं रिमूव क्योंकि हमें नया ऐड करना है। सेव द कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी डिसेबल एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन। Again click on devices, software ISKZ. Enable the ISKZ setup. And dynamic target 192.168 जहां से आपने स्पेस शेयर किया है उस पेयर स्टोरेज की IP एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। सेव द कॉन्फ़िगरेशन, रिफ्रेश द पेज, बैक टू द सर्वर। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कनेक्टिविटी। चलिए यहाँ पे 25 GB का स्पेस आपका कनेक्टेड दिखा रहा है। इट मीन्स दैट वी आर एबल टू एक्सेस अवर RDM। आपने स्टोरेज ऐड किया। अनफॉर्चुनेटली स्टोरेज में आपको 25 GB का स्पेस नहीं एक्टिवेट करना है, दिखेगा यहाँ पे। अगर आप इसको नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट न्यू VMFS पे जाएंगे, 25 GB दिखेगा। अगर आप इस 25 GB को एज ए डेटा स्टोरेज यूज कर लेंगे तो आप RDM नहीं देख पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली वर्चुअल मशीन की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, इंस्टेंस की प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं, आप एडिट सेटिंग में जाकर के एड हार्ड डिस्क पे क्लिक करते हैं, आप देखिए रॉ डिस्क मैपिंग दिख रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको उसी 25 GB की इंफॉर्मेशन बता देगा जो आपने डिसाइड किया है। मीन्स जो हार्ड डिस्क आप डेटा स्टोर में ना यूज करके, ठीक है, जो हार्ड डिस्क आप डेटा स्टोर में ना यूज करके डायरेक्टली अपने वर्चुअल मशीन के लिए एक्सेस करते हैं वो आपका RDM डिस्क कहलाता है। इस RDM की खासियत ये रहती है कि इसका जो IOPS रहता है, थ्रूपुट रहता है, वो आपके नॉर्मल डेटा स्टोरेज डिस्क से बेटर रहता है। प्लस माइग्रेशन में इजी टू माइग्रेट टू फ्रॉम वन ESXi टू अनदर, वन वर्चुअल मशीन टू अनदर वर्चुअल मशीन में अगर आपको स्पेस को मैप कराना है तभी ये आपको इजिली मैप करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए RDM हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया RDM डिस्क को, बट मीनवाइल चेक द वर्चुअल मशीन स्टेटस। इसको ऑन हो जाए तो ज़्यादा बेटर तरीके से हमें मिल जाएगा स्पेस। मीनवाइल लेट मी नो गाइस, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? बिकॉज ये सारी चीजें आपको रियल इन्वायरमेंट में मिलेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, क्लाइंट को समझाना पड़ेगा, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करेगा, एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो सर्टिफिकेशन में क्वेश्चन आएंगे। तो मेक श्योर कि इस पे कोई डाउट नहीं होने चाहिए स्टोरेज में, क्योंकि स्टोरेज हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन कंट्रोलर। नेक्स्ट डोमेन कंट्रोलर के बाद स्टैंडर्ड स्विच, उसके बाद vCenter सर्वर। तो कहीं पे कोई डाउट है स्टोरेज में तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर हमें मेनली क्या है कि RDMs का RDM डिस्क का जो बेनिफिट समझ में आया ये है सबसे पहले तो कि हमें IOPS ज़्यादा मिलेंगे, स्पीड फास्ट मिलेगी, हमें जो है माइग्रेशन में भी ईजी होगा कभी भी कहीं पे भी ले जाने के लिए। तो मेनली यही है। और जब भी हमें एप्लीकेशन लाइक दैट DB सर्वर के लिए ही मेनली मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। हमने कर भी रखा है, SQL सर्वर में की भी है हम्म, रॉ डिस्क करेक्ट मैपिंग करेक्ट। अपने ओल्ड एनवायरनमेंट में किया हुआ है सर हमने। अच्छा, सर इसमें बस रॉ ये जो है और वो करने के लिए जब भी हमें स्नैपशॉट लेना पड़ेगा, मतलब दो तरह से लेना पड़ेगा। एक बार आप और इसको हटाओ, स्नैपशॉट लो, फिर अलग से लो उसका बैकअप, यही ना सर?
नहीं, एक ही बार तो लेना पड़ेगा। इसमें जब स्नैपशॉट लेने का टाइम है तो यू जस्ट नीड टू रिमूव द डी अटैच, नॉट रिमूव, डी अटैच करेंगे या इस आरडीएम को कनेक्ट कर स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर अटैच कर देंगे। ओके। बट सर आरडीएम डिस्क का जो है इसका बैकअप अलग से लेना होगा ना हम लोगों को? आरडीएम डिस्क ऑलरेडी रेट 5 पे रन कर रही है। वी आर ओके नॉट ओके टेकिंग द बैकअप फॉर आवर स्टोरेज। वो उनकी हेडेक है, हमारी ओके हेडेक ओके नहीं है कि ओके स्टोरेज का स्पेस ओके ओके हम प्रोटेक्ट करें। हम्म? ओके सर ओके 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 गॉट इट। ये लास्ट स्टेप है। जैसे ये इंस्टॉल होता है हम आरडीएम डिस्क को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे एंड विल सी द हार्ड डिस्क अंडर द वर्चुअल मशीन ऑफ विंडोज 11। ओके, नाउ वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन। विंडोज 11 हमने इंस्टॉल किया था, वो हमें यहाँ पे सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया है। what I'm going to do, just need to open disk management। यहाँ पे हम disk management open कर लेते हैं and type disk mgmt.msc, या redirect कर देगा हमें स्टोरेज के पैनल पे। दिस इज द स्टोरेज पैनल, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट का पैनल दिख रहा है यहाँ पे, और 15 गीग स्पेस हार्ड डिस्क एक अवेलेबल है। लेट मी ऐड आरडीएम। एक्शन पे जाओ, आरडीएम के लिए सेटिंग्स पे जाओ, सेलेक्ट न्यू हार्ड डिस्क, एड अ हार्ड ड्राइव, आरडीएम 25 जीबी का हार्ड डिस्क आपको डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर देंगे। 25 गिग में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ग्रेड आउट है। सेव करेंगे, विद इन सेकेंड आपके पास 25 जीबी का हार्ड डिस्क डायरेक्टली स्टोरेज से, डायरेक्टली सैन स्टोरेज से आपको असाइन हो चुकी है। सर ये फिर हम कम साइज ज़्यादा साइज नहीं कर सकते वहाँ से? बैकएंड से करेंगे ना, लर्न को बोलेंगे इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज कर देगा।
मतलब हमारे पास यहाँ पे वीएम में नहीं होगा ऑप्शन ये कि वीएम इसको। में नहीं है। हाँ, ओके वीएम में नहीं है। ओके सर। ठीक है, हम डेडिकेटेड Uh, स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं किसी को, तो डेडिकेटेड के ओके लिए हम आरडीएम का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके ओके अंडरस्टैंड। सर यहाँ एक क्वेरी था। हम्म, ये जो आरडीएम स्टोरेज है, इज इट स्केलेबल और इज इट फिक्स्ड? आई मीन इन फ्यूचर अगर इसी को हम वॉल्यूम इनका इसका इंक्रीज करना चाहते हैं तो इज इट पॉसिबल और नॉट सर? या वी हैव ऑप्शन टू इंक्रीज इट। आरडीएम के लिए आपको बैकएंड की टीम से, बैकएंड की टीम यानी जहां से शेयर स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट, उस यस स्टोरेज टीम यस। को बोलेंगे कि जो आपने लॉजिकल यूनिट नंबर हमारे आरडीएम के लिए असाइन किया था ना, कैन यू प्लीज इंक्रीज द कैपेसिटी, जो आपने स्पेस दिया था उसी में आप एडिट करके और स्पेस ऐड कर दीजिए, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आरडीएम। अब आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं इसका स्नैपशॉट लेकर के। एज वी डिस्कस बिफोर, जब तक आपके सिस्टम में आरडीएम डिस्क अटैच है, आप स्नैपशॉट नहीं ले पाएंगे। आरडीएम डिस्क में स्नैपशॉट किसी भी इंस्टेंस का पॉसिबल नहीं है। गो टू द स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट, टेस्ट स्नैप के नाम से एक तैयार करने की कोशिश करते हैं। ये आपको फेल टू क्रिएट स्नैपशॉट, रीजन साफ है क्योंकि आपने आरडीएम लगा रखा है। अगर आप मशीन को टर्न ऑफ कर देते हो, ठीक है, ये भी हम करके देख लेते हैं। अगर आपने मशीन को टर्न ऑफ कर दिया तब भी स्नैपशॉट हो जाएगा, अगर आपने इसको डीअटैच कर दिया तब भी स्नैपशॉट हो जाएगा। बट रियल इन्वायरमेंट में यू नो दैट कभी भी हम इंस्टेंस को टर्न ऑफ नहीं करते, कभी भी डाउन टाइम नहीं करते, तो आप क्या करेंगे, बेटर रहेगा कि आप डीअटैच करो और डीअटैच करने के बाद इसको एक्सेस करा लो, स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद फिर से अटैच कर दो, सिंपल। इज दैट ओके? यस सर, अगर डी अटैच करेंगे तो वहाँ एप्लीकेशन नहीं हमारी स्टॉप होगी? नहीं नहीं नहीं, एप्लीकेशन में क्यों स्टॉप होगी? एप्लीकेशन अगर आपने कोई डिपेंडेंसी लगा रखी है तो 100% उतनी देर के लिए तो ब्लॉक होगा ना। क्योंकि जनरली हम 30 एसक्यूएल सेकेंड। सर्वर डीबी वगैरह डालेंगे सर इसमें, तो हाँ, तो अगर उसमें अगर टेबल है, अगर उस 25 GB में टेबल वगैरह रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका लिंक जो है आपकी वेबसाइट से डाउन हो जाएगा। हम्म, बिल्कुल सर। सर अगर इसका क्या आपने यहाँ सॉल्यूशन से है दिया, सर? सॉरी, इसका सॉल्यूशन क्या है कि सर हमारा डाउन भी ना और हम बैकअप ले पाए ये स्नैपशॉट? नहीं डाउन तो होगा ही, बंद करोगे तब भी डाउन होगा, उस केस में भी डाउन होगा। या फिर आपको जो टेबल वगैरह है वेबसाइट की, वो आपको रखनी पड़ेगी अपने लोकल में, लोकल स्टोरेज में, शेयर स्टोरेज में, आरडीएम में नहीं रखना होगा। बट ऐसे नीड बहुत कम ही पड़ती है, बहुत कम ही रिक्वायरमेंट होती है। और इसको जो हम चेंजेस करेंगे, जो स्नैपशॉट वगैरह क्रिएट किया जाता है ना, वो ऑफ पीक पे, ऑफ पीक इन द सेंस कि जैसे जब वेबसाइट पे बहुत कम ट्रैफिक आ रहा है, उस केस में ये किया जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है हार्डली 2 से ढाई मिनट का प्रोसेस है, और इतनी देर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी इन्वायरमेंट को। ओके सर, ये यहाँ पे अपन आपने किया हुआ है सर। बस एक क्वेश्चन और था इसी के रिलेटेड। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था ना, मैं एक थिन, चलिए सर अभी फिनिश कर लीजिए, बाद में एंड में पूछूंगा सर कुछ। देन दिस इज ऑल अबाउट द आरडीएम। ये हमारे पास आरडीएम का कॉन्सेप्ट हुआ। स्टोरेज में लगभग जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, स्टार्टिंग में हमने मेंशन किए थे, वो सभी पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इफ यू फील लाइक कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन या कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, तो वी कैन डिस्कस, बिकॉज वी नीड टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और जो अगला स्टेप है, डोमेन कंट्रोलर एडिंग है, और दूसरा नेटवर्किंग में स्टैंडर्ड स्विच का कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम स्टैंडर्ड स्विच को कॉन्फ़िगर करने का काम करते यस हैं। यस
सर मेरी एक दो क्वेरी थी सर। प्लीज। सर एक तो ये क्वेरी है कि जो जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था, एक लर्निंग करी थी कि जब हम वीएम क्रिएट करते हैं तो उसमें थिन प्रोविजनिंग देते हैं, ठीक है सर। तो थिन प्रोविजनिंग में हमने देखा कि थिन प्रोविजनिंग को हम कभी भी थिक में भी हम थिक में तो हम थिन में नहीं आ सकते, वापस रिवर्स नहीं आ सकते सर उसमें। पर थिन से हम थिक में जा सकते हैं, नहीं जा सकते? क्योंकि सॉरी। मैंने प्रैक्टिकल में देखा था तो वो चेंज नहीं हो पाया। थिन जैसे थिन प्रोविजनिंग देते हैं ना सर डिस्क में, हम वहाँ पे जब प्रोविजनिंग करते हैं, वीएम क्रिएट करते हैं और वो स्टोरेज से हम उसको थिन प्रोविजनिंग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने चेंज करने की कोशिश की कि उसको थिन से थिक में ले जाएं, तो वो भी ऑप्शन ग्रेड आउट है, ठीक है। थिक में तो हो ही नहीं सकता सर, थिक से थिन में आ ही नहीं सकते हम। उन दोनों में ऑप्शन में जो थिक लेजी और थिक एगरनेस, उनमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो तो क्लियर है। पर हम एक प्रैक्टिकल कर रहे थे उस टाइम कि इसको भी चेंजेस करके देखते हैं हम, तो वो भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया सर। तो है पॉसिबल नहीं है सर वो? नहीं 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 नहीं, अगर आपने डेटा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, अगर उसमें आपने स्टोरेज रख दिया कुछ ना कुछ, हम्म। तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे रियल एनवायरनमेंट में। अच्छा। और अगर जस्ट अभी क्रिएट किया है उसके बाद चेंज करना चाहें तो नहीं, जब भी नहीं होगा? हमने एक भी फाइल कॉपी नहीं अगर की थी सर आपने, उसमें। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने पार्टीशन क्रिएट कर दिया तो हो जाएगा। अगर आपने पार्टीशन क्रिएट कर दिया देन यू आर अनएबल टू एक्सेस। पार्टीशन क्रिएट मतलब सर? पार्टीशन मतलब जो स्टोरेज आपने ऐड किया, अगर आपने हम्म। उसको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर लिया, हम्म। वर्चुअल मशीन के में अटैच कर दिया आपने उसको, अपने ESXi उस स्टोरेज के साथ अटैच कर दिया, देन यू आर एबल टू मेक एनी चेंजेस। उस केस में कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा फिर। तो कौन से उसमें चेंजेस हो पाएगा सर वो थिन से थिक में? नहीं, वो आपको डीअटैच करना पड़ेगा। डीअटैच करने के बाद आप उसको, उसका बैकअप लेंगे एक दूसरे में, देन यू नीड टू डिलीट इट। ओके ओके ओके। ओके वी सर। डोंट हैव एनी। ओके सर। एक लास्ट सर वो और बता दीजिएगा कि किसी भी वीएम को जो शट डाउन और वो करते हैं कैसे, उसका टाइम शेड्यूल कैसे करते हैं, ऑटो शट डाउन और आई स्टार्ट? ऑटो थिंक वी शटडाउन वी या सर। हैव उसमें ऑलरेडी आएगा, सेंटर में आएगा? डिस्कस की अबाउट द शेड्यूलिंग। विदाउट वी सेंटर शेड्यूलिंग या अलर्ट नहीं बनाया जा सकता। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। Yeah. Next point is related to the domain management with vSphere, correct? Domain management with vSphere का मतलब ये है कि for example we have a number of ESXi host, यहाँ पे हमने multiple ESXi host attach कर रखे हैं, and we established one domain controller. Domain से सभी लोग को, both are you aware about the domain controller? तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लास डॉट कॉम को डोमेन बनाया, ये अपने पास ESXi होस्ट है, ESXi होस्ट 1, ESXi होस्ट 2, दो हमने लगा के। क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेन, डोमेन क्यों लगाया जाता है? तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जो हमें पता होना चाहिए कि इस वजह से डोमेन को ESXi के साथ ऐड किया जाता है। पहला है नेम, रिजोल्यूशन, दूसरा है NTP सर्वर मैनेजमेंट, नंबर थर्ड पे आएगा आपका यूजर्स एंड परमिशन, एंड नंबर फोर्थ पे आपको मिलेगा वी सेंटर सर्वर, सेंटर सर्वर इंस्टॉलेशन। ठीक है, these all are the points that you need to cover in case of vCenter server. Means why we need to vCenter server? अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करता है कि vCenter सर्वर को लगाने की क्यों, सॉरी, डोमेन कंट्रोलर लगाने की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये 4 पॉइंट जो है ना डिस्क्राइब करो।
अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, बिकॉज इसका प्रैक्टिकल तो देखना जरूरी है ही है। अंडरस्टूड सर। है ना? व्हाट इज नेम रेजोल्यूशन? एनीवन Yes. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन Yes. व्हाट इज नेम? इसका सर मतलब क्या है? डोमेन नेम रेजोल्यूशन सर आईपी टू नेम, जो होस्ट नेम हमारा एडी के अंदर जो FQDN जो एक्टिव होता है। डोमेन में एफक्यूडीएन जस्ट। मतलब ESXi होस्ट को आईपी के जगह पे उसके नेम के थ्रू एक्सेस कर पाना, इज दैट एक्सेस करेक्ट? कर पाएंगे। Yes. इन Yes. एडी। क्योंकि आईपी याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट ESXi का नेम याद कर पाना आसान है कि चलो ये HR की ESXi हो गई, ये सेल्स डिपार्टमेंट की ESXi होगी, ये IT डिपार्टमेंट की ESXi होगी। इट इज रियली इजी टू मैनेज, राइट? यस Yes. एनटीपी क्या होता है? सर टाइम टाइम के लिए, जो टाइम टाइम हम टाइम सिंक्रोनाइजेशन सर्वर्स होता है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए, डेट एंड टाइम। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, है ना? Yes. यस ESXi के साथ साथ उनके होस्ट की टाइमिंग को कंट्रोल करना, ESXi के साथ साथ उनके टाइमिंग को मैनेज करना, सिंक्रोनाइज करना एनटीपी की जिम्मेदारी। यूजर्स एंड परमिशंस। यूजर परमिशन का मतलब आपको कौन से यूजर को क्या राइट्स देने हैं, वो आप एडी के यूजर को सिंक्रोनाइज करेंगे। यस Yes. ठीक है। और एडी के साथ भी लास्ट में, इंटीग्रेट कर सकते हैं सर इसको, यूजर्स को। हाँ, डोमेन के यूजर को हम डोमेन का यूज वही करेंगे पर्पस ESXi है को ना, लॉगिन करने, यस ओके। है ना? just like तो RBAC डोमेन or के like यूजर that. Yes. को हम इसमें एक्सेस करेंगे। ओके सर। So these all are the points that we need to cover as a VM admin। और ठीक है, वी आर ऑन ट्रैक। तो नेक्स्ट एक सेशन चाहिए हमें डोमेन और नेटवर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट सैटरडे हमारा पूरा जाएगा, डोमेन को कन्वर्ट करेंगे, डोमेन को ESXi से जोड़ेंगे, प्लस स्टैंडर्ड स्विच कंप्लीट करेंगे, और फिर संडे से विल स्टार्ट आ वी सेंटर सर्वर। और वी सेंटर सर्वर हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि वी सेंटर सर्वर अकेले में बहुत सारी सर्विसेज हैं, HDRS वगैरह सब वहीं पे मिलेगा हमें। इज दैट ओके? यस सर ओके सर। Okay, sir. ठीक है, तो आप प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैं आपको आज एक लिंक भेज रहा हूँ विच इज ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए। जिनके पास सेटअप नहीं है हाई कॉन्फ़िगरेशन का, वो उस लिंक का इस्तेमाल कर लें, या फिर इन डे टाइम अगर आपको वीकडेज में कभी लगता है कि 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करना है, तो लेट मी नो, आई विल सेंड माय सेटअप विद एमी एडमिन या जो भी टूल होते हैं ना एनी डेस्क के थ्रू, वो आपको असाइन कर देंगे कि एटलीस्ट आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। जितेंद्र आपके साथ, सुभिजीत आपके साथ कोई इशू नहीं है प्रैक्टिकल का, बट अबाउट द अदर लाइक राकेश, श्रीकांत, अगर आपको नीड है सर्वर की तो लेट मी नो। ऑनलाइन के साथ साथ आप मेरा सेटअप यूज करोगे तो उसमें आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है? बट आपको थोड़ा सा पहले बताना पड़ेगा 2 घंटे, क्योंकि क्लासेस रहती हैं। अगर सेटअप उस टाइम पे बिजी है तब तो मुश्किल है, बट अगर सेटअप खाली है तो डेफिनेटली विल शेयर माय सेटअप विद यू एंड यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल डेडिकेटली। इज दैट ओके? यस सर। सर एक चीज बताइए, हम हमें कभी कोई क्वेरी आती है तो सर आपसे हम व्हाट्सअप करके कोई आप क्वेश्चन का हाँ, आंसर पूछ कभी भी सकते हैं व्हाट्सएप करो ना, कभी कभी भी व्हाट्सएप करो। एक्चुअली ड्यू टू सर? सिक्योरिटी आई एम अनेबल टू क्रिएट अ ग्रुप, बिकॉज यू नो दैट नंबर जो है वो बहुत सिक्योरिटी की वजह से कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इस वजह से मैं ग्रुप नहीं बना रहा हूँ। अदरवाइज इफ यू ऑथराइज देन आई कैन क्रिएट अ ग्रुप, यू नो दैट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो Sir, तो हम please ग्रुप बनाएंगे। create a group, no? हाँ, सर दैट दैट व्हाई आई एम आस्किंग दैम, I don't बिकॉज mind. थैंक यू। सर तो प्लीज आई जस्ट क्रिएट नीड ए द ग्रुप। परमिशन। सर एक ग्रुप बना दीजिए आप हमारे लिए, जब भी हमें कोई क्वेश्चन हो, हाँ. क्योंकि जनरली ना हमें बीच में पूरे वीक में हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो हम इधर उधर नेट पे वैसे ढूंढ लेते हैं कहीं ना सॉल्यूशन। तो आप ठीक है, ठीक एग्जैक्टली है, हमें। ठीक है, क्योंकि हाँ, राकेश ने भी सजेशन दिया था, बट वही है ना, वी जस्ट नीड अथॉरिटी, अपनी तरफ से हम नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आई क्रिएट अ ग्रुप, ताकि हमें भी आसानी रहेगी कि एक जगह पे हम डॉक्यूमेंट वगैरह सब भेज देंगे या वीडियो वगैरह का लिंक भेज देंगे, तो हमें भी बार बार पिंग नहीं करना पड़ेगा सबको। तो लेट मी क्रिएट अ ग्रुप एंड शेयर द डिटेल, विल कनेक्ट इन नेक्स्ट वीक एंड डिस्कस मोर अबाउट द वर्चुअलाइजेशन। इज दैट ओके? ओके सर। Yes, sir. सर आज जो थैंक यू दो सो लिंक का मच। वीडियो है सर, दोनों ही शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग, एक तो ये और एक इससे पहले जो हाँ, जो डिस्कनेक्ट हो गए थे। ग्रुप में मैं सारा कुछ, ग्रुप में मैं सारा कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक है? यस सर। और और सर सर कल की वीडियो में ना पीडीएफ नहीं आया था वो, PDF और एक रहेगा फर्स्ट सर। वीडियो में भी पीडीएफ नहीं है सर। मैं आज ग्रुप में भेजता हूँ, डोंट वरी, ग्रुप में भेजता हूँ। ओके सर।
Yes, sir. Okay, Priyansh. Thank you very much, sir. Thank you. Manjit Welcome. sir, please send all the old videos also, sir, in हाँ group मैं so that समझ everybody एक have. बार ठीक है, श्योर we'll send the from starting to till date. Yes, sir, Yes, because sir. I discovered it is difficult to me understand the things because No worry, last session. no, Okay, thank you very no much. worry. So that I can I'll prepare send the in the recording. entire week, no? I'll send the recording if you feel like you wanted to perform the practical, तो आप मैं सिस्टम को शेयर करके आपके साथ भी असाइन कर दूंगा ताकि वीडियो देख के आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है? Okay, thank you very much. Yeah, जल बाय बाय Thank you, sir. एवरीवन. bye. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.